Well, they say that the world is afraid of a woman who isn't afraid at all. On behalf of YOTA, a very empowering and a very happy International Women's Day to all the gorgeous women watching us, and yes, to all the men out there, thank you so much for being there. I am Shikha Singh, your host, and this day, ladies and gentlemen, as you know, marks a call to a gender equal world, free of bias, free of stereotypes and discrimination, and one that is all inclusive. This year's International Women's Day, let's hashtag break the bias. Well, it doesn't just stop here. Today, with a senior leadership team member from YOTA, we will also be launching a special campaign for all the women who've been on a break due to various commitments. So stay tuned for that till the end because we will tell you how you can actually make a comeback. पायलट बनने चली है वो तो सिर्फ लड़के बनते हैं ना। अगर गुंजन सक्सेना ने द कारगिल गर्ल एज वी कॉल हर उसने भी यही सोचा होता तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने जवानों की जान बच नहीं पाती। Whether it's deliberate or unconscious bias that we are so conditioned with, ladies and gentlemen, makes it difficult for women to move ahead in their careers and even personal lives. Well, only knowing that bias exists, I'm sure आप सब जानते हैं, isn't enough. Action is the need of the hour to level the playing field, so as to say. So we thought of casting a woman with whom we will engage in an actionable talk. So please do remember to feel free, more than anything else, feel free, feel happy, good vibes in the house today. Do ask us questions, share your thoughts, share your inhibitions as well. Yes, why not? Through the comment box and the Q&A segment that you see right there on your screens. I'm sure we are used to with how to operate in this, digital world that way. And right now I'm going to announce the official hashtag also. So hashtag IWD2022, hashtag YOTACIO Masterclass are the hashtags that you can use while sharing about your presence on social media. Take a nice screenshot with our special guest for the day and just be actionable. That's the need of the hour, as I said. And yes, don't forget to tag YOTA as well. Well, you know what? I'm also going to explore the fun side of our guest, but that would happen a little later. Right now, just a little more legwork for all of you on the screen. Throwing a trivia at you all. So here it comes. Of course, let's have some greetings and everything being exchanged as well. I'm going to ask you, tell us, when was the first National Women's Day observed and where? So let's have some comments coming in. I'm going to tell you the right answer, but right now let's just see if you know the right one. So I'll be reading out some of them which come to us and the right ones. Stay tuned for that bit as well. And right now, let's get set to invite and welcome. All right, there are a few of you who are requesting, okay, you want to know the right answer right here. So, okay, I'll tell you. The first National Women's Day was actually observed in the US, and this happened in the year 1909. So back then, and since then, of course, here we are on a trajectory, right? And we are in this together. Well, they say that pain shapes a woman into a warrior. Yes. So smashing down the stereotype that women can't be physically strong, our power guest for today was, and in fact, is the first Indian woman to get duo medals for her six-pack and was awarded the most beautiful bodybuilder in the women bodybuilding competition held in Hungary. Well, her clientele, if we talk about, is as strong as she is. Notable film stars like Taapsee, S.S. Rajamouli, Prabhas, Rakul Preet, and a lot of other stars. Our woman of worth, ladies and gentlemen, wears many, many hats, from Bahu to bodybuilder. Her story, as we lovingly say, is a knockout. So give it up to welcome the certified fitness trainer and nutritionist, mountaineer, photographer, professionally trained classical singer, a DJ, and of course, a proud mother of two, if I've done my homework right. Please welcome on the screen, Kiran Demla, with a good round of cheer, please, everyone. Thank you. Thank you so much.
Hi, इतने Kiran. अच्छे वेलकम और इतने धमाकेदार वेलकम के लिए शिखा। Thank you. Happy Women's Day. और किरण मैं आपसे honestly confess करना चाहूंगी that yesterday in my gym I was boasting around to everyone that whom I'm gonna e-meet tomorrow. So of course they've seen my social media post and they're like, okay, say our hello to Kiran as well. Thank you so much. Thanks a lot. And happy Women's Day to all beautiful women. And thank you once again to all. थैंक यू। और इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका योटा परिवार की ओर से और हमारे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, आई एम श्योर हु आर वाचिंग यू फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। और ग्रेट सुधीर का अब फाइनली राइट आंसर आ रहा है मेरे क्वेश्चन पे। बट राइट नाउ इज द टाइम दैट किरण आपसे हम कुछ अहम सवाल जरूर पूछेंगे आज, पर शुरुआत करते हैं इफ यू अलाउ आपके पसंदीदा गाने से। सो व्हाट विल डीजे किरण सिंग फॉर अस ऑन दिस स्पेशल डे? 3 2 1 हियर वी गो। प्लीज अगर आवाज में कुछ हो जाए तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि बहुत साल हो गए मैंने गाया नहीं है, पर म्यूजिक अंदर ही है। अभी मैं डीजे हूं तो अभी मेरे हाथ चलते हैं और मेरा बॉडी लैंग्वेज चलता है कंसोल पे एंड क्लब एंड इवेंट्स में। मेरे फेवरेट हमेशा से जगजीत सिंह रहे हैं और अरिजीत सिंह रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा अभी गाने मुझे याद तो नहीं है, लेकिन एक दो गाने हैं जो मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ और मेरे मुंह पे हमेशा रहते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं गाती हूँ। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। That's it. आई थिंक आप जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत आपकी आवाज भी है। आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा वी वांट टू क्लैप फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग अ स्पोर्ट। Thank you. All right, Kiran, diving straight into a conversation because बहुत सारा कुछ है मेरे एजेंडा में आपके साथ। We have got this 1 hour and let's make the most of it. I'm going to ask you, Kiran, right away, how can we advocate for ourselves as women in a stereotype world? जैसे कि आप जानती हैं जो कि मेल डोमिनेटेड है, और हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो इस तरीके का नैरेटिव हम कैसे चेंज कर सकते हैं? Women's are self-strong, trust me. हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। We women are self-empowerment. हमारे यहाँ ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी empower हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है या बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट। हम ऑलरेडी एम्पावर हैं। एग्जाम्पल है कि एक गांव की औरत जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और सिर्फ अपने घर का काम करती है, बच्चों को देखती है, अगर कोई आकर उसके बच्चे को हाथ लगा दे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आप सोच सकते हो जिस औरत को कुछ नहीं आता है, जो सिर्फ अपने घर का काम, जो कोई कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई, कहीं नहीं गई, वो उसको छोड़ेगी? वो एक शेरनी बन जाएगी। उसमें ऑटोमेटिकली इतना पावर आ जाएगा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है बताने की कि उसको कुछ कुछ पावर की जरूरत है। तो हम औरतें ऑलरेडी एम्पावर हैं, हमारे अंदर पावर है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है और जरा सा उसको पिन करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो जाग जाएगी। क्या बात है। तो आई थिंक आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस हमें इस तरीके का ऑलरेडी होना चाहिए। there's no special treatment that's required, but we should consider that way. किरण, आपके इंटरव्यूज पढ़े मैंने, ऑफ कोर्स आपके बारे में और जानने की कोशिश करी। सो आई थिंक at one place you've said I've tried yoga, then you finally joined the gym, where you were very shy initially. You said you would sometimes just go in your salwar kameez, try to be invisible, hiding behind the equipment. So tell us, DJing, bodybuilding, fitness training, all are very, I would say male dominant industry. So what is that one message to females who are in this kind of male dominant industry from you? हम लोग हमेशा से चलता ही आया है कि आदमी हमेशा ऐसे रहता है और औरत हमेशा उससे एक नीचे रहती है। पता नहीं क्यों ये है ऐसा। हम कितना भी बोलेंगे कि हम दोनों एक ही तराजू में हैं, मैन एंड विमेन आर सेम, पर नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। जहां तक मेरी बात है, जब मैंने जर्नी चालू की थी एंड आई वाज वेरी शाय और सब कुछ, लेकिन मुझे एक चीज हमेशा समझ में आई है अपनी जर्नी से कि
जब हम कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और बहुत साल तक कर नहीं पाते हैं, लेकिन ऑलरेडी अंदर से रहता है कि हमें करना है, और जब हमें जहां कहीं भी मौका मिलता है करने का, चाहे वो 10 साल के बाद, जैसे मैंने 10 साल के बाद चालू किया, 10 साल, मतलब बहुत लंबा टाइम है ये सोचने के लिए कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ और इस जगह पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो ऑलरेडी अगर हमारे मन के अंदर कुछ करने के लिए है पर वो दबा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलता है कि आपको जंप करना है उसमें, तो मुझे लगता है कि आपको कर देना चाहिए और आप कर जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फायर अंदर है, उसे हम सिर्फ दबा के बैठे हैं। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही था कि हम ऑलरेडी अंदर से, मैंने वही बात रिपीट करूंगी, हम ऑलरेडी एम्पावर हैं, हमारे अंदर पावर है, हम लोग सेल्फ स्ट्रांग हैं अंदर से, जी, सिर्फ पहचानने की जरूरत है, और जैसे ही मौका मिले उसे छोड़ना नहीं है, जस्ट उसको पकड़ना है और जंप कर देना है। क्या बात है। आई थिंक ये अतिशयोक्ति तो नहीं होगा ये कहना कि आई थिंक सम ऑफ अस, जैसे कि हम आपको सुन रहे हैं, आई हैव गूज बम्स, एंड आई थिंक उस आवाज को आप पहचानिए जिस आवाज की किरण बात कर रही हैं। दे से, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ मैन। पर इसका वाइस वर्सा करें तो शायद बहुत कम सुनने में आता है। सो किरण, आपसे पूछूंगी कि जब आप तरक्की कर रही थी तो क्या कुछ लोगों ने आकर आपसे कहा कि आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड का सपोर्ट है जिस मकाम तक आप पहुंची हैं? ये तो बहुत सुनने को मिलता है रियली? मेरे हर इंटरव्यू में और हर जगह, क्योंकि हम फैमिली की बातें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में नहीं लेके आते हैं, तो जो दैट्स आता ओके। है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है, उनकी मर्जी थी, लिख दिया। पर अंदर की बात सिर्फ हम फैमिली को ही पता होती है कि अंदर क्या है, कैसे है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, या बहुत सारे हस्बैंड हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, करते हैं जो भी फैमिली कंडीशंस हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा अपना भी होता है। मतलब हम, ऑफ कोर्स। जब मैंने किया तो शायद, मैं अपना फैक्ट बता रही हूँ कि बहुत जगह पे ऐसे हुआ कि आज मैं इतना बिंदास बोल रही हूँ कि शायद अगर मैंने अपने हस्बैंड की बात मानी होती थी, जहां पहले ही उन्होंने नो बोल दिया था, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। पर ये डिटेल्स हम लोग सोशल मीडिया में नहीं बता सकते हैं। बहुत बार मैंने 75%, मैं कहूंगी 75 भी छोड़ दीजिए आप, मेरे केस में मैंने 90% खुद कदम बढ़ाया है, जहां मुझे फैमिली की मना वाह। थी। मैं शायद वो चैंपियनशिप भी नहीं कर पाती अगर वो मेरी जिद नहीं होती। मुझे पता है वो गलत नहीं है। तो जी। मुझे हमेशा से एक बात बहुत खटकती है ये, हम्म। कि जब भी कोई औरत कुछ एक मकाम हासिल करती है या कुछ करती है, उसका नाम आ जाता है, लोग जानने लगते हैं, एक ब्रांड बन जाता है, तो हम्म। सबसे पहले नीचे कमेंट्स में और सोशल मीडिया में और लोग सबसे पहले यही करते हैं कि हस्बैंड सपोर्टिव है, फैमिली सपोर्टिव है, मतलब इसीलिए बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड शी रीच She's good. समवेयर, और जो भी Yeah. है ऐसे। Yeah. जब एक आदमी ऐसा होता है, जब एक आदमी ऐसा करता है, तो नीचे ये कमेंट क्यों क्यों नहीं आते हैं कि उसकी वाइफ की वजह से आज वो एक जगह पे है। वाइफ कितना बड़ा सपोर्ट है घर में, भले वो हाउस वाइफ क्यों ना हो, सुबह से रात तक अगर आप बाहर सुकून से अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, बिल्कुल। आप सारा मेंटल, मतलब स्ट्रेस नहीं है आपको थोड़ा भी किसी चीज घर को लेके, इसका मतलब आपके घर में कोई है जो आपका पूरा घर संभाल रहा है, सुबह से रात तक आपके बच्चों को देख रहा है। ये कितना बड़ा स्ट्रेस है अगर किसी की लाइफ में ना हो। तो कोई इंसान ये क्यों नहीं कहता कि अगर आदमी की तरक्की होती है कि औरत की वजह से ऐसा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक हाउसवाइफ है, इसके लिए उसका नाम नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ, एक उससे बढ़ के, मुझे लगता है स्थान ही नहीं है किसी का इस दुनिया में, मुझे ऐसे लगता है। हर चीज अपनी जगह है, आदमी काम करते हैं, उनका काम है, सब है, लेकिन एक औरत 10 काम एक साथ कर सकती है। वो ऑफिस का काम भी करती है, घर जैसे ही आती है, अपना बैग रखे बिना, सब कुछ देखे बिना, शूज भी नहीं उतारेगी, चप्पल भी नहीं उतारेगी, सबसे पहले ये देखेगी मेरे बच्चे कहाँ है, वो खाना खाया नहीं, सीधे किचन में, इधर उधर बिना। क्या वो आदमी करेगा? मतलब मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक बता रही हूं कि किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है आदमी और औरत के काम को। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि एक औरत का, उसको उतना ही रिस्पेक्ट और एक वो जो स्थान मिलना चाहिए ना, वो आज भी नहीं है। उनको लगता है हमारा यही काम है, हमें यही करना है। तो मुझे लगता है औरत का स्थान बहुत ऊपर है, और मैं डेफिनेटली इस बात के बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ
कि अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है तो अंदर सुन लेती हूँ कि बिकॉज ऑफ हर यू नो बहुत सारी जगह उन्होंने ना बोल दिया था, अगर वो मैं हाँ में नहीं बदलती उसको अपने सेल्फ उससे कॉन्फिडेंस से, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती थी। थैंक यू एवरीथिंग जो भी उन्होंने किया, जो भी, पर नो, बिकॉज ऑफ मी आई एम हियर। Absolutely, and we love that confidence. I think जिस तरीके से मैं कहूंगी कि शायद आपको सपोर्ट की जरूरत, इट्स गुड टू हैव अ सपोर्ट, शायद आप कह रही हैं कि बिना सपोर्ट के भी जिस तरीके से आपने yes. मेरा यही कहना है कि हम सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये सिर्फ अंदर से हिम्मत की जरूरत है। दुनिया में सबको सपोर्ट नहीं मिलता, चाहे वो फैमिली का हो या फ्रेंड्स का हो, कोई नहीं है। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही हमें स्ट्रगल करना है। सिर्फ हिम्मत की जरूरत है कि आपके पास दो चॉइस होती हैं, यस और नो। दो, एक रास्ता है जो ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, एक कठिन है एक इजी है। आप, ये आपके ऊपर है कि कौन सा चूज आपको करना है। बिल्कुल, शायद वक्त ज्यादा लगे पर आप सेल्फ केपेबल हैं। दिस इज द मैसेज दैट किरण वांट्स टू गिव टू एवरीवन। एंड किरण, यहाँ मुझे याद आ रहा है कि हाउ मानुषी चिल्लर, आवर मिस वर्ल्ड, so she answered beautifully to this question when she was asked by the judges internationally that which profession do you think should be the highest paid? So she said the profession of being a mother. Yes. So I think very beautifully said, क्योंकि वो भी एक तरीके से full time job है, right? Yes. You give it your all, so we definitely must respect that, and you are powerful women. All right, and okay, so to everyone who's listening, I'm sure aap agree karenge ki as human beings we are very tuned to this thing, to doing things at a certain age. For instance, I cannot learn to swim after I cross 40. If I do not get a job once I pass out of college, shayad main successfully na ho paun. So we race and we map ourselves with time and with age, for sure. किरण, आपका क्या टेक है इस बात पर? किस तरीके से, क्योंकि आज हम ब्रेकिंग द बायस उस बारे में बात कर रहे हैं, तो इस चर्चा में हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इस तरीके का माइंडसेट हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि टाइम और एज शायद इतना मायने नहीं रखता है जितना हम सोचते हैं। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई है, क्या बात कर रहे हैं आप। आज औरतों ने क्या क्या करके दिखाया है। अगर आप हिस्ट्री खोल के देखो और आज की तारीख में भी अगर आप देखो तो औरतों ने क्या क्या करके दिखाया है। ऐसे थोड़ी है कि जिन औरतों ने इतना कुछ अचीव किया है उनको सफेद खून बहता है और हमको लाल खून बहता है, ऐसे थोड़ी होता है। हम सब एक ही तो हैं। हम सब एक ही हैं। सिर्फ ये मुझे लगता है कि अगर आपका माइंडसेट, अगर आप अपने, हमारा सबसे पहले वर्कआउट हमको अपने माइंड का करना चाहिए। अगर आपने माइंड का वर्कआउट कर लिया तो मुझे लगता है दुनिया जीत जाओगे। अरे भगवान का एड्रेस मिल जाएगा आपको, मैं तो कहती हूँ। तो माइंड हमारा एक ऐसी चीज है, इस माइंड गेम खेलता है हमारे साथ और कुछ नहीं। अगर हम इसको कंट्रोल में कर लेते हैं 75% भी, तो आप कुछ भी कर जाओगे दुनिया में, कुछ भी। एज इज जस्ट अ नंबर, ट्रस्ट मी। मैं हमारे प्रोफेशन में जो मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ और फिटनेस में हूँ इतने 17 साल से, मैंने, आप अगर उठाकर देखिए सोशल मीडिया, यूट्यूब देखिए, 70 साल 80 साल के बॉडी बिल्डर्स हैं। इतनी एज, औरतें भी हैं आदमी भी हैं। 70-80 years, really? 100%। ऐसी चीजें हम देखते हैं कि मतलब देख के ऐसे लगता है तो वो क्या इंसान नहीं, हम अलग हैं वो अलग हैं क्या? नहीं, ये सब हमारा माइंड, हम सबका माइंड अलग है, ब्रेन अलग है जो अलग सोचता है और अलग थॉट्स देता है। तो अगर हम ये सेट कर देना एक बार में, तो मैं कहती हूँ एज को तो आप साइड से रख दो। आई एम ऑलमोस्ट 50 नाउ। आपको लगता है कि मैं 10 साल के बाद ऐसी नहीं रहूंगी ना? we don't believe you're 50. सवाल ही पैदा नहीं होता। You don't look 50, that's fine. मैं आज यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे प्रॉमिस करती हूँ, और ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है और अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि ट्रस्ट मी, टिल आई एम अलाइव, जब तक मैं भगवान के पास जाऊंगी उसके एक दिन पहले भी फिट और हेल्दी रह के जाऊंगी। ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना पैसा होगा नहीं होगा, सब साइड से रख दो आप, लेकिन इतना जरूर बोलती हूँ कि अपनी हेल्थ को खराब नहीं होने दूंगी। क्योंकि जब हेल्थ खराब होती है, वो टाइम मैंने देखा है। जब मैं हाउसवाइफ थी और इतना जब ब्लड मेरा डायग्नोस्ड हुआ था ब्लड क्लॉट, वो टाइम मैंने 3-4 साल देखे हैं कि कितनी हालत खराब हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन से मैंने अपना हेल्थ का सोचा, आज 17 साल हो गए हैं, गॉड ग्रेस, नो, आई प्रॉमिस टू एवरीवन एंड आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि टिल आई एम अलाइव आई विल बी हेल्दी।
All right. So we were just talking about being unstoppable, or we will be unstoppable. So Kiran, मैं कह रही थी कि we would be putting you in a spot, or we'll play a rapid fire with you, but that will happen a bit late. Right now, I would want to ask you कि 10 monotonous years जहाँ पे आपने कहा कि every day you would just wake up, clean and cook for the family. स्ट्राटा अगर हम बात करें, इस तरीके की चीज को हम कैसे प्रैक्टिकली अवॉइड कर सकते हैं? आपका वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया था, कैन यू आस्क मी वंस अगेन? या आई एम सेइंग किरण कि आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं कि हाउ कैन वी जो हाउस होल्ड ड्यूटीज, जो कि ऐसा माना जाता है कई बार कि वुमेन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उस चीज को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जहां तक घर के काम की बात है ना, मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि ये तो एक ब्यूटी है औरत की, इसमें गलत कुछ नहीं है। आज भी जब मैं किचन में काम करती हूँ, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, अपने घर की साफ सफाई करती हूँ, आज भी सब कुछ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर मेन है कि आपको अंदर से कैसा लगता है। जब हम सारा दिन काम करते हैं सुबह से रात तक, जैसा मेरा लाइफ था कि मैं सुबह उठती थी 5 बजे ससुराल में, सुबह नहा धो के किचन में पहुंच जाना और रात तक काम करती थी 12 बजे तक। मुझे याद है कि मैं रात को 12 बजे सोती थी और दोपहर में मैं सोने भी नहीं दिया जाता था। सब्जी काटना है, ये करना है, वो करना है, अभी सब कुछ, बड़े लोग आने वाले हैं, हमारा इट वॉज जॉइंट बिग फैमिली। तो जब कभी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, क्या हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इसके लिए ही बने हैं? मुझे वो लगता है अंदर से आप कैसा फील करते हो। जब पहला टाइम था मैं सारा दिन काम करती थी, उसमें कुछ खुशी नहीं थी, मैं सिर्फ करती थी। ऐसे लगता था कि हम सिर्फ इसके लिए ही बनाए गए, हमें इसके लिए ही बुलाया गया और हम सिर्फ यही कर रहे हैं। देयर इज नो अप्रिसिएशन। इस काम के लिए क्या हमें रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? रिवॉर्ड हमें कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए। एक जना कोई अगर शायद ये बोल दे कि आज तुमने खाना खाया, सारा दिन तुम काम कर रही थी, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था, इस एक लाइन में पैसे जाते हैं? नहीं। अप्रिशिएट, मतलब हर हर इंसान को इस दुनिया में अप्रिशिएशन चाहिए चाहिए। आज की तारीख में जब तब वो खुशी नहीं थी अंदर से, सारा दिन काम होता था, ऐसे लगता था हम सिर्फ कर रहे हैं अंदर से। लेकिन आज जब मैं काम करती हूँ तो मेरा खुद का घर है, मेरा खुद, अब तो दुनिया बहुत बदल गई है, अब पूरी लाइफ मेरी बदल गई है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं लाइफ में। आज की तारीख में जब मैं काम करती हूँ तो मन को एक खुशी होती है अंदर से। उसके साथ साथ मैं प्रोफेशनली बाहर का भी काम कर रही हूँ और सारे दुनिया के काम कर रही हूँ, लेकिन घर का काम करते हुए भी आज खुशी होती है अंदर से। जब बच्चे आके प्यार से पूछते हैं, भले वो आज मेरा बेटा बाहर है, वो फोन करके पूछेगा मम्मी आज क्या किया आपने सारा दिन, आपने खाना खाया, आपने क्या, बेटी आएगी मम्मा आज मैं इतने बजे आऊंगी, मम्मा आप ये मेरे लिए बना के रखना, आप सारा दिन काम करते हो, ये लाइनें, ये मतलब ऐसे लगता है कोई हमें नोटिस कर रहा है। When someone notice कि you are doing, अपने घर का काम भी, खाली जॉब नोटिस करो, पैसे कमाओ, that's not enough। आप जब घर में काम करते हो, जब सुबह से शाम, जब रात को वापस घर जाते हो, आप अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी बहन को जब घर में पूछो आप आज कैसा दिन रहा तुम्हारा, आज तुमने क्या किया सारा दिन, ये एक लाइन में क्या हो जाएगा? सो दैट्स कॉल्ड हैप्पीनेस। वो एक लाइन से घर की जो औरत है ना वो जी जाएगी, उसे और ज्यादा मन करेगा कि मैं ज्यादा काम करूं। तो मुझे लगता है कि यही बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आप जब काम करते हो तो आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए। इट डजंट मैटर कि आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, इट डजंट मैटर कि आप एक बहुत बड़ी सो ये दो चीजें अलग है एंड दैट्स I think ये छोटी छोटी चीजें which just make the vibe beautiful, so make her feel important, and I think let us make feel each other important also. Yes. Kiran, पूछना चाहूंगी, of course, you've said it out loud out there that you're the happiest version of yourself, right? So tell us, what's your favorite form of self care? One thing जो कि अगर tick off हो जाती है on a particular day means that you've cared for yourself today. Self care, you are talking about the self care? Absolutely, yes. Okay. वर्कआउट मेरे लिए सेल्फ केयर मेरे लिए इनर हैप्पीनेस। सेल्फ केयर फॉर मी इज इनर हैप्पीनेस, ट्रस्ट मी। कि आप कुछ भी करो पूरा दिन में, आप वर्कआउट करो, आप घर का काम करो, कुछ भी करो, अगर आप अंदर से खुश हो, दैट्स कॉल्ड सेल्फ केयर। अच्छा, सो आप कह रहे हो कि आप
जो भी काम करते हैं, irrespective of it being, चाहे वो कुछ घर का काम हो या जिम जाना हो, to train people, the celebrities out there, you find happiness in कह रही हूँ everything that you कि do. मैं वही कह रही हूँ कि पैसा कमाना या घर का काम करना या वर्कआउट करना या एक एकदम हॉट और फिट जी, और आपकी बॉडी आप वर्कआउट कर रहे हो, आप दिख रहे हो, आपके कपड़े पे अच्छे हैं, ये सब चीजें आप साइड से रखो। बिल्कुल। ये बहुतों के पास होता है। हम्म। हम्म। भरा हुआ है पैसा लोगों के पास, बड़े बड़े घर जी, हैं, सब कुछ है, पर एक साइड से रखो आप हैप्पीनेस। जो इंसान हैप्पी नहीं है अंदर से, जिसका इनर हैप्पीनेस नहीं है, वो मुझे नहीं लगता कि वो खुश है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है इनर हैप्पीनेस इज अ सेल्फ केयर। Absolutely. And to all our audience members, आप भी share करिए in the comments there कि आपके लिए आपका favorite form of self care कौन सा है. We'll be happy to learn from you all as well. And please, whatever questions you have, because right in a few minutes हम किरण से आपके सवाल पूछेंगे. So keep it all coming in the Q&A box right now, please, everyone. All right, इसी के साथ किरण, जब भी हम मिस हैपनिंग्स की बात करते हैं, कोई बुरी चीज, हमेशा हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं हो सकता. तो जब ये चीजें होती हैं, देन थिंग्स चेंज ऑल ऑफ अ सडन. बताइए हमें ऐसे कौन से टैंजिबल डेफिनेट चेंजेस आपने अपनी लाइफ में करे. क्योंकि मैंने पढ़ा कि when you were unable to move, you were diagnosed with, if I'm not wrong, the blood clots in the brain. So how did you sort of process that, and what were the changes that you brought? पता है, मैंने अपने जीवन में सीखा है शिखा कि जी. इस जर्नी में हम्म. हम हमेशा ऐसा बोलते हैं ना, हम सबकी लाइफ में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और हम हमेशा बोलते हैं अच्छा ऐसा भी होता है। हम ऐसे बोलते हैं अच्छा ऐसा भी होता है, सबने बोली होगी ये लाइन 100% अपनी So लाइफ में। true. लेकिन पता है, ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल. अपनी Yeah. जर्नी में सीखा है कि ऐसा ही होता है। God. आप That प्रिपेयर sounds रहो, scary to me for a bit, but yes, trying to hear your ऐसा thoughts. ही होता है। जब मुझे कोई पूछता है ना क्या ऐसा भी होता है, यस ऐसा ही होता है। Okay. तो मतलब यू हैव टू बी प्रिपेयर। आपको हमेशा सारे सर्कमस्टेंसेस के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव लाइफ में जो भी आने वाला है, यू हैव टू प्रिपेयर। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली, घर, पैसा है, सब कुछ है। नो 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 नो, चीजें कब कहां से आ जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने अपनी लाइफ, जब मैं एक हमेशा से ऐसी रही हूँ कि पहले मम्मी पापा के साथ हम लोग ना, शादी से पहले एक बिंदास अपना स्कूल, कॉलेज, म्यूजिक हमेशा से रही हूँ। शादी के बाद जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद जब मैंने अपना प्रोफेशनल करियर चालू किया, 2006 में जब चालू किया था, फिटनेस का, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही थी, ऐसी ऐसी चीजें जिनके लिए शायद मैं प्रिपेयर ही नहीं थी बिल्कुल। लेकिन वो मेरे लिए एक लर्निंग पीरियड था कि ये अगर आज मैं ये सब बातें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे ये एक्सपीरियंस हुए हैं। आज से अगर 20 साल पहले आप मुझे ये सब पूछते तो मैं प्रिपेयर नहीं रहती, मैं नहीं बता पाती ये सब, क्योंकि ये सब हुए हैं मेरे साथ, इसके लिए आज मैं बता रही हूँ। ऐसी ऐसी चीजें, आप सुबह उठो तो सारी दुनिया आपकी चेंज हो गई। मुझे याद है जब मैं अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप कर रही थी 2013 में, मैं बहुत इंथुजियास्टिक अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, सब कुछ रेडी है। मुझे याद है मेरी चैंपियनशिप से 15 दिन पहले, आई वाज 37 दैट टाइम, 15 दिन पहले मेरे इन लॉज की डेथ हो गई। और हमारे घर में 3 डेड बॉडीज एक साथ रखी हुई हैं। माय बोथ ब्रदर इन लॉ और माय फादर इन लॉ, दे मेट विद एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। आप सोचो 15 दिन 20 दिन रह गए हैं मेरे चैंपियनशिप को, जिसकी तैयारी मैंने कब से कर रही हूँ। मेरा बॉडी रिप में है, मेरा न्यूट्रिशन, मेरा डाइट। वो चैंपियनशिप का टाइम एक बॉडी बिल्डर के लिए ऐसे होता है, इट्स अ सुपर हार्ड टाइम जहां आपको डॉट टू डॉट काम करना पड़ता है। एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। वो सब कुछ हुआ, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हर तरफ ऐसे चल रहा था। माय हस्बैंड वाज क्राइंग, मेरी फैमिली में सब कुछ ये चल रहा है, एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय चैंपियनशिप आल्सो कि अब क्या होगा। 100% आई वाज श्योर कि अब मैं यहाँ जाने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूरा वो 1 साल सारा दिन वो, बट उसे मैंने कैसे मैनेज किया है ये मुझे पता है। तो आई जस्ट वांट टू से कि, और मैं गई। मैंने नवंबर में 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट में मैंने फाइट किया था इंडिया की तरफ से। मैं कैसे गई होंगी ये सिर्फ मुझे पता है, शायद मैं इस कन्वर्सेशन में शायद ना बता पाऊं। दैट वाज सो हार्ड टाइम। आई एम ओनली द मैरिड वुमेन एट होम एंड आई एम अ यंगेस्ट
से छोटी हूँ और मैं सिर्फ मैरिड हूँ, और उस समय सारे काम मुझे करने थे मुंबई में। हम्म, हम मुंबई में, मेरी शादी हुई थी 97 में, थाना। अब हम हैदराबाद में हैं। तो मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको, मतलब ये तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ गई थी एकदम से, लेकिन आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और आपको फाइट करना आना चाहिए। एक क्विक माइंड होगा, आपका दिमाग कब चलेगा? जब आप अलग अलग चीजें जो है ना, सोशल मीडिया, ये वो दुनिया की सारी चीजें जितनी भी है ना, आप अगर उनसे थोड़ा ध्यान हटा देंगे और सिर्फ जो पॉइंट वाली चीजें हैं ना, उन पे आप ध्यान देंगे। एंड सेम थिंग आई एम डूइंग। आई डोंट बिलीव इन ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये वो सब मैं बहुत दूर रखती हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि ये आपके माइंड को सबसे ज्यादा खराब करते हैं। मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम पे और अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजों पे रहता है, ताकि मैं उसको फ्यूल में अंदर डाल सकूं, पॉजिटिव चीजों का। I think this is a very important takeaway for me as well. So, Kiran, बहुत ही खूबसूरती से, I think जितनी vulnerability से और authenticity से आप share कर रहे हैं, I think that is in itself is very, very inspiring today. और इससे पहले कि मैं audience questions लूं, here's this little thing that I want to ask कि बेबी किरण, हम छोटी बच्ची किरण की बात करें अगर, तो she was a hit in Kathak since the age of 3, orchestra since the age of 4 years. तो किरण, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इस पूरे जर्नी में म्यूजिक ने आपको हील किया है. इज दैट लाइक वेरी पावरफुल, रियली, यू नो? म्यूजिक इज माई लाइफ। ओके. बिना म्यूजिक के शायद मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मेरा हेड टू टो सिर्फ म्यूजिक से भरा हुआ है, मेरी लाइफ उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो मेरे ब्लड में है। मुझे एक अजीब सा नशा है म्यूजिक के लिए, और ये ब्लड में है मेरे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से ऐसा कुछ किया है, अडॉप्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब 4 साल की थी तब मैंने पहला स्टेज शो किया था। मैं जब ऑर्केस्ट्रा सिंगर, जब मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाना चालू किया, मैं 4 साल की थी तब। मुझे याद है मैंने पहला रति अग्निहोत्री का गाना गाया था, कुमार का, वादा न तोड़। जो पहले वादा न तोड़, ये बहुत फेमस हुआ था वो टाइम पे गाना, लता मंगेशकर जी का। और जी, बिल्कुल. वहां से मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, स्टेज पे गा रही थी। हमारे कथक की तरफ से ही सिंगिंग डांसिंग का कुछ कंपटीशन था। तो उन्होंने कहा था, एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत अच्छा गाना गाती है, हम उसको गवाएंगे। पीछे बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा था, लेकिन मैंने वो गाया, और मेरे मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे, आए थे वहां पे, और उनके इतने हाथ पैर कांप रहे थे। पेरेंट्स के हाथ पैर कांपते रहते हैं जब बच्चे स्टेज पे होते, कहीं गलती न करके कुछ हो ना जाए। और वहां पे पीछे ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, और मुझे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना था, और पहली बार, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, सडनली उन्होंने खड़ा कर दिया था। और वो मेरी लाइफ का सबसे पहला स्टेज शो था, और मैंने उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन खत्म होने तक ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग की है। मैं कॉन्सर्ट्स करती थी, लेकिन मैंने, जब मेरे पेरेंट्स को लगा ये बहुत अच्छा गाती है, तब मैंने बहुत ही प्रोफेशनल क्लासिकल सिंगिंग सीखा। तो 24 साल तक मैं आगरा घराना से अपनी सिंगिंग को मैंने कंटिन्यू किया है। मैंने काफी कॉन्सर्ट्स किए हैं। आई वॉज क्लासिकल सिंगर, ध्रुपद, धमार, तराना, ठुमरी, मैं ये सब गाया करती थी। Yes. You know, मैं अभी बस in my mind I was like, really, she does so many things, इतनी सारी चीजें, so multi-talented. I mean, hands down inspirational. So that's beautiful to know. और don't worry, हम आपसे एक और, we'll do a separate session जहाँ पर हम आपके, it will just be a singing session with you. So we will not ask you to maybe sing right now more, but I think नहीं, मैं गाना गा भी नहीं सकती हूँ। मैं गाना अभी इतना गा भी नहीं सकती हूँ। अभी सिर्फ मैं डंबल्स उठाती हूँ और कंसोल पे मेरे हाथ चलते हैं। सो आई एम अ डीजे। तो आई एम एंजॉयिंग माय म्यूजिक। इट डजंट मैटर फॉर मी व्हेन आई लिसन द म्यूजिक ऑन कंसोल। थाउजेंड ऑफ लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सामने मेरा म्यूजिक सुनते हैं, और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, मैं खो जाती हूँ म्यूजिक में। दैट्स इट। और क्लब में या अलग अलग कॉन्सर्ट्स होते हैं, मुझे खुशी होती है कि लोग पता नहीं किस मूड से वहां पे आते हैं। सबके अलग अलग मूड होते हैं हजारों। और मुझे अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने म्यूजिक से किसी को एक स्माइल दे सकूं, अपने म्यूजिक को एक खुशी दे सकूं, इंसान का मूड चेंज कर सकूं, मुझे लगता है कि उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। तो मेरा जीवन साकार है अगर मैं किसी को हैप्पीनेस दे सकती हूँ तो, चाहे वो कोई भी जरिया हो। And Kiran, I think you're a very big giver also in that way. And और किसी ने आपसे कहा है कि आप एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर भी हैं. Kiran's like, मुझे ऐसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं शिखा. All right. Okay. मुझे पता है क्या होता है,
जब आपको सच सच जो होता है ना, जब मैं अपने बारे में बताती हूँ या अपनी स्टोरी के बारे में, ये जर्नी के बारे में बताती हूँ, इट्स नॉट से स्टोरी, इट्स अ जर्नी, ये मेरी लाइफ है। जब हम अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं विथ फीलिंग, मैं उसको फील करती हूँ। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि 2013 में मेरे साथ ये हुआ था, तो मेरे सामने एक पिक्चर घूम रहा है कि उस समय मैं क्या कर रही थी। मैं उसको रैंडमली नहीं बोल सकती कि हाँ मैं बस एक बड़ी पढ़ाई चीज बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरा जीवन है, मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ, ये सब चीजों से मैं निकली हूँ, तो मैं इतने फील के साथ बताती हूँ और वो सब चीजें उजागर हो जाती हैं, एकदम से लाइव मेरे सामने आ जाती हैं। तो मैं उसको इतने फील से बताती हूँ और वही सब लोगों को लगता है कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ या क्या हूँ। पर मैं बहुत फील से अपनी जर्नी को बताना पसंद करती हूँ, ताकि जो सामने सुनने वाले लोग हैं उनको लगे ये लाइव चल रहा है, उनके शायद जीवन से कहीं कनेक्ट हो कुछ बातें। तो we that's so true. I mean, हम वो तार ढूंढते हैं जिस तरीके से आप शब्दों को पिरो रही हैं as you're talking to us. We try and find to relate to you basically and to your journey. मैं इसी बात पे एक And छोटी we सी बात remember our बताना struggles. So चाहूंगी। I think बहुत ही मैं एक relatable छोटी सी हैं बात आप. एक बात इसलिए बताना चाहूंगी, इसी इसी वजह से, जैसे आप कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि आप कनेक्ट हो जाते हैं लोग। मुझे याद है जब मुझे बिल्कुल. पहला मौका मिला था टेडेक्स में, आई एम टेड स्पीकर। तो जब मुझे पहला मौका मिला था, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्पीकर्स का एक सपना Yes. होता है कि उनको टेडेक्स में बात करने का मौका मिले। मुझे याद है कि जब मुझे पहला मौका मिला था टेड टॉक के लिए, तब मैं कहीं ये डर रही थी। मैंने बहुत सारे स्पीच देखे, मैंने इतना सुना है। अब मैं ऐसा बात करने वाली नहीं हूँ कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा बात कर सकती हूँ इतने सारे लोगों के सामने खड़े होके, या टेड टेड स्पीकर मतलब इज समथिंग डिफरेंट, ए प्रोफेशनल जो इंग्लिश में बात Yeah, करते हैं, of जो course. एंड आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। हम तो बिंदास बोलते हैं, हम लोग तो बिल्कुल ऐसे हिंदी मीडियम से चारों बच्चे पढ़े हैं। वो टाइम पे हमारे पापा के पास पैसे भी नहीं थे पढ़ाने के लिए, लेकिन हम कैसे न कैसे करके हम लोगों ने पढ़ लिया, बस वो है। और आज अपनी काबिलियत से जहां भी हम पहुंचे हैं। तो जब टेडेक्स का आया था, तो मुझे याद है कि जब मैंने स्टेज पर बात करना चालू किया, मुझे 20 मिनट मिले थे और मैंने पूरा हिंदी में बात किया था। लेकिन उससे पहले मुझे कहीं ना कहीं एक मन में था कि कैसे बात करूंगी। मैंने इतने सारे स्पीचेस देखे हैं, मुझे इतना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आता है। मैं काम चला सकती हूँ, काम चलाने के लिए मैं चांद पे भी पहुंच जाऊं लेकिन कैसे करूंगी मैं ये बात, मतलब मैं तो। लेकिन मुझे याद है कि मेरा एक सिंपल सा मानना है, उस टेड स्पीक मतलब टेडेक्स के बाद में मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया। और सब लोगों ने इतना पसंद किया था, सब लोगों ने मुझे हक किया कि योर स्पीच वाज द बेस्ट स्पीच, आपने इतने इतने अच्छे से बोला। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप दुनिया की किसी भी भाषा में बोलो, किसी भी भाषा में बात करो, द मेन पॉइंट इज, आप इंग्लिश में बात करो, तेलुगु में, काफी लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं बेचारे। द मेन थिंग इज हाउ यू कनेक्ट विथ पीपल, आप अपनी फीलिंग्स को लोगों के साथ कैसे जोड़ते हो, ये इंपॉर्टेंट है। काफी लोग इंग्लिश में फ्लुएंट बात कर जाते हैं, 1 घंटे किसी को समझ में भी नहीं आता किसने बात क्या किया। तो मुझे लगता है कि कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ यू कनेक्ट विद पीपल, डजंट मैटर योर लैंग्वेज। Said it all. All right, किरण, जल्दी से हम कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस लेंगे, और because we'll also have our team member also joining in a bit. मैं आपसे I think I'm going to take this question from Nishi कि how should we counteract the negative stereotypes of feminism? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि feminism जब भी हम कहते हैं तो it means like it's a very strong word, it's a negative word. So ऐसा नहीं है कि हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, हम एक बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे टैकल करना चाहिए? वेरी क्विकली इफ यू कैन टेल अस। पता है, ये लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। अगर आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे। हमेशा पॉजिटिव चीजों को बांध के रखो, ग्रैब कर लो, और नेगेटिव चीजें यहाँ से निकाल दो। एंड दैट्स व्हाट आई डू। मैं नहीं सुनती हूँ, और ये लाइफ में धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आता है। विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते हो। आप किताबी बड़ी बातें नहीं बोल सकते हो। जैसे जैसे आपको इस तरह के क्रिटिसिज्म या नेगेटिविटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि आप किससे ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। एक नेगेटिव बात सुन के हम अंदर से बहुत ये हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, और जैसे आप पॉजिटिव सुनते हो तो एकदम, तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाता है कि मैं नेगेटिव बात सुन रही हूँ तो मुझे ऐसे हो रहा है, पॉजिटिव सुन रही हूँ तो हमें क्या ग्रैब करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव। जिस दिन आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप पॉजिटिव बातों को ग्रैब करो, नेगेटिव क्या है, आप काले दिखो, गोरे दिखो, मोटे दिखो, पतले दिखो, आप जो करोगे लोग बोलेंगे। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आपको सब पसंद करें ये जरूरी नहीं है। व्हेन यू एक्सेप्ट, ऑटोमेटिकली वो चीजें
ठीक हो जाएंगी। Perfect. So Kiran कहती हैं choose wisely what you're feeding your mind. Sudhir का अगला question हम लेंगे. Kiran is asking for a working woman in a scenario where you have an unavoidable meeting versus an unavoidable family commitment. जैसा कि हमने आपके केस में भी देखा in some way, which one should the woman prioritize? It's a tough call. It's tough. Depend on कि दोनों में से क्या important है. आपका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है. कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि अगर मैं ये कर दूंगी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा. हमें डेफिनेटली दोनों में चूज करना पड़ता है. लेकिन अगर आप बैलेंस कर सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस कि आप कैसे कर सकते हो. शायद हम फैमिली वालों को मना सकते हैं, कभी कभी कंपनी को या अपनी दूसरी मीटिंग को मना नहीं सकते हैं. तो वहां हमें, मुझे लगता है कि फैमिली को बोल देना चाहिए और हमें मीटिंग करना चाहिए. जहां पे मीटिंग का कुछ ऐसा है कि हाँ मैं इसे बाद में कर सकती हूँ और कहीं चांसेस हैं, तो फैमिली दोनों इंपॉर्टेंट है. काम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी है. दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस और योर कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर फैमिली एंड ऑफिस. ठीक है. एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दर्शना जामले, थैंक यू फॉर शेयरिंग द क्वेश्चन. फर्स्टली दर्शना वो पूछ रही, इट्स वेरी इजी फॉर अ नॉर्मल वुमन टू गेट हर्ट बाय हर क्लोज्ड वंस. हम ज्यादा हर्ट होते हैं ऑफ कोर्स जिससे हम क्लोज होते हैं, व्हिच इन टर्न अफेक्ट्स अस मेंटली एंड फिजिकली. दिस मेक्स मी स्टॉप लविंग माय सेल्फ. व्हाट शुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर सेल्फ लव? We spoke about self love. ये क्वेश्चन मुझे बहुत, दर्शना थैंक यू सो मच. ये क्वेश्चन मुझे, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रेनर हूँ एंड मैं अराउंड द वर्ल्ड औरतों को ट्रेन करती हूँ और बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ, तो मैं ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सुनती हूँ, ट्रस्ट मी. बस इतना ही कहूंगी कि ये सबसे पहले अपने ही दुखी करते हैं. मतलब ये फैक्ट है, बहुत बिटर ट्रुथ है, मगर सबसे पहले वहीं से सब कुछ आता है. तो मैं इतना कहूंगी कि मुझे ऐसे लगता है, जो मैंने अपने से सीखा है, कि मुझे भी बहुत ऐसा था. अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो सही है, तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी दूसरी चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए. क्योंकि ये एक बार नहीं 10 बार ऐसे बैटल्स आएंगे एंड यू हैव टू फाइट. सिंपल सी बात है. अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कैसे फाइट करोगे? ये तो हर बार आप लड़खड़ा जाओगे कि अभी एक जना बोलेगा, फिर दूसरा जना बोले, आप बिल्कुल अंदर धंसते जाओगे जमीन में. एकदम फायर के जैसे बाहर निकलना है. Until unless you are not doing anything wrong, you no need to listen anyone. Right. मुझे लगता है कि जहाँ सुनना है वहां सुनना है. सिर्फ ट्रस्ट करो अपने ऊपर कि जो आप कर रहे हो, कह रहे हो, वो सही हो सकता है. जी. Be open to possibilities, but be headstrong. Trust yourself, says the firecracker herself, Kiran Demla. Kiran, Rajesh Panchal ka पूछना है, and I think yes, I would like to, definitely ask this. Kiran, you've been instrumental to train celebrities in Bollywood, the business industry. What about your husband, fitness, and kids? Okay. तो क्या आप मतलब वो सारी ट्रेनिंग जो है वो किड्स की तरफ और हस्बैंड की ओर भी डायरेक्ट करती हैं, और इज जस्ट अबाउट दोस सेलिब्रिटीज दैट यू ट्रेन? किरण बताइए. कहावत सुनी है, घर की मुर्गी दाल बराबर. We all can relate to this, the maximum, है ना? सिंपल. एक टीचर क्लास में 100 बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है, और हमें बहुत बार ऐसा होता है. तो ये बहुत फैक्ट है. लेकिन डेफिनेटली हर माँ चाहेगी, हर इंसान चाहेगा कि हमारे घर में सब लोग हेल्दी रहें, फिट रहें. वो कोशिश भी करेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट आई एम सो ग्लैड कि मेरे दोनों बच्चे हैं, बहुत ही हेल्दी हैं. और एक कोरियोग्राफर है मेरी बेटी, और मेरा बेटा भी बैडमिंटन चैंपियन है, उसमें प्लेयर है. तो दोनों अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं. उन्हें समझाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ. तो दे बोथ आर वेरी हेल्दी, और मैं एंड तक कोशिश करती रहूंगी जब तक वो मेरे हाथ में, मैं उन्हें छोड़ू नहीं, क्योंकि आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. Okay, Kiran, I'll take up this one more question very quickly, very quickly here. जहाँ पे सुरेखा सिंह पूछ रही है, how to take that first step towards fitness, as this is always where I fail. सबसे पहले अपने माइंड को बनाने की कोशिश करो. माइंड का वर्कआउट करो कि आप कर क्यों रहे हो. सिंपल. मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ, जिनको भी ट्रेन करती हूँ. सबसे पहले ये सोचो कि आपका गोल क्या है और आपको ये करना क्यों है. क्या ये एक हैबिट, मतलब ऐसे ही करना है, टाइम पास है आपके लिए? नो. आप सिंपल, काफी लोग, जो मेरे काफी स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता है, जो लोग कहते हैं कहाँ से चालू करें मैम, आप बताओ हमको. तो मैं उनको एक ही बात करती हूँ कि अच्छा ठीक है, तुम्हें चालू करना है, जस्ट गो फॉर वॉकिंग whenever you have time. बहुत ज्यादा सोचो मत कि सुबह करना है, शाम को करना है, कब करना है, मेरा ये काम. नो 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 नो. जस्ट गो फॉर वॉक. ठीक है, आधा घंटे नहीं होता, 20 मिनट जाओ.
ठीक है 15 मिनट जाओ, मैं कहती हूँ घर से बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा जॉगिंग करो, कुछ और मत करो। जब ये एक हैबिट बन जाए धीरे धीरे करके, उसके बाद उसमें चीजें ऐड करते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट्स ऐड करते जाओ, या प्रोफेशनल की हेल्प लो। एकदम से आप बहुत सारा वर्कआउट करोगे तो आपको हैबिट नहीं है, और आप दूसरे तीसरे दिन बोर हो जाओगे और फेल हो जाओगे, लगा अरे छोड़िए तो बेकार है बिल्कुल। तो मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह से ही गाइड करती हूँ, और सबसे बड़ी बात है मैं सबको बहुत समझाती हूँ। मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, मैं आई थिंक उन लोगों के सब लोग बोलते हैं मैम आप लाइफ कोच हो। अब That's मुझे so लगता true. है मुझे लगता है कि खाली वर्कआउट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सब यूट्यूब में है, लेकिन अपने स्टूडेंट को समझाना कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं। तो मैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि सबसे पहले अपने माइंड का वर्कआउट करो, और एक बेबी स्टेप लो। हमारा बॉडी जो होता है ना, वो एक बेबी के जैसे ही, हम अंदर से बच्चे ही हैं, हम कभी बड़े नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है अंदर वो बेबी है, तो हमें बेबी स्टेप लेना चाहिए, और ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे करके उसको आगे उसको बढ़ाना चाहिए। Absolutely, I would like to agree with you. So yes, they say that a woman with a voice is by definition a strong woman. और किरण, ये आप बहुत खूबसूरती से प्रूफ करती हैं. I have to ask you, how's the Josh? And everyone tell us, how's the Josh, Kiran? Hi. पावरफुल। Wow. ठीक है, great. तो चलिए इसी के साथ, because the Josh is high, I got to invite Madhuri Mahamankar from the head of Human Resources, YOTA, who's right here to launch a beautiful campaign. Kiran, we'll have you back on the screen, but right now, let's just hand it over to Madhuri. Madhuri, what's up? Happy Women's Day. Happy Women's Day, everyone. Happy Women's Day, Shikha and Kiranji. Thank you so much. I'm listening to Kiranji, and I think it is very inspiring and motivational story she has to tell us. And I'm sure every audience, there on the webinar today is enjoying this and getting motivated. Okay. Yes. So thank you so much, Kiranji. And what I've heard here is, my takeaway is, determination, discipline, and a strong desire. What she had made every impossible possible. So and Kiranji, you're a perfect hero and a perfect example of what we are celebrating today on this IWD is breaking the biases. So wish you a very, very happy Women's Day, Kiranji, and may you get all what you desire for. Wow. Yeah. Madhuri, thank you so much. I'm sure Kiran is smiling backstage. But quickly, I'm going to ask you, because everybody has been waiting. How can women get back to business? That is the work that they love doing, the work that keeps them happy. Please share some insights. Yes. So Shikha, before I tell this answer, how can we get back to work? I have to tell everyone here. We have a lot of women around us when we see that they leave the flourishing career. Okay. There are a lot of girls we see who have outperformed in the schools and colleges suddenly disappear from the career market. So study says, marriage, raising kids, preparing kids for exams, taking care of elderly parents are the major reasons for such dropouts. So it's not easy for someone who has studied long, to leave that career, to leave that job, leave their aspirations and sacrifice on their dreams. But what is more difficult today is to re-enter and rebuild. So that's what we are here for. And in India, more than 70% of women are struggling to re-enter the formal workforce, who have left their job for any reason, or maybe primarily for the family reasons. So today on this IWD, YOTA would like to open a platform to all the lovely ladies out there waiting for an opportunity to rise again more beautifully and successfully. So this is our program. And I would like to quickly take one more minute to talk about the program here. So this particular program is built to bring back the best and the brightest talent. And at YOTA, we would definitely support them re-entering into the career by refreshing their skills, making them up to date, tech savvy, as well as provide them, engaging, rewarding, as supportive and collaborative work environment. So what is the basic, qualification to enter into this program is, minimum 2 years of experience, what you're applying for. And as on today you are on a career break. That's the basic thing, we are looking for. So there are 3 different paths we would be providing to the people or to the women specifically to come back to the mainstream. So one could be the internship,
So this is, where a particular meaningful project, you will work with us for 8 to 12 weeks. You'll get one-on-one mentoring, and you will work on a project in the area of interest of yours, so that you get that corporate flavor and you build up that confidence to, re-enter the corporate for a full-time job. Second could be, the hiring, and this would be like, full-fledged, full-time job offers wherever we see that you're fit based on your interview assessment, based on your skills, capabilities, and, your merits, you will get to the full-time jobs as well. And the most important thing is the training programs. So today, if we are entering into an unprecedented era, technology is booming. You hear a lot of things, AI, ML, blockchain, IoT, OTT, and what's not, okay? So technological development is imperative for women too. Otherwise, you'll feel like, that Red Queen in the Alice in Wonderland, to run faster and faster, to stay at the same place. So women cannot be left out from this development. Otherwise, it will have an impact, on equality as well as equity and the social and economics too, right? So that's why we are coming up with this training program, where we will upgrade their skills, we will upskill them for the same role, okay? What that new role look like in this digital world. So these are the basic three, returning paths we would be providing. And anybody is interested over here, and I urge all the participants, the CIO fraternity who's joining us today, my colleagues, my friends, and anybody from the network, please, help us reach out to those who really need this to come back to the, Women's Day. And it's a time to give back to the society. And, if anybody wants to know more about the program, I would say please write to us on careers@yota.com. So our team will, connect with them. So that's all, Shikha, from my side as of now on the program. Thank you so much, Madhuri, for sharing this. And I think it's very heartfelt to know how YOTA is creating this platform that you just talked about to bring diversity and inclusion in the work environment as well. So I think kudos to the FAB team out there. Yes, thank you so much. Thank you. And Madhuri, we will not let you go because there's a rapid fire round that's rapidly coming. We just got few minutes. So we are going to get Kiran back on the screen, and you all can, of course, exchange virtual hugs for now. Kiran, can we see you right back on the screen? Okay, 3, 2, 1. Let's make some noise for you again. Okay. Good to be seeing the two ladies right now. It's very power-packed, I must tell you. And of course, with the campaign being announced as to how you can get back to work, it's time for the rapid fire round today, and we'll get to know these women a little better. The rule of the game is very, very simple. Kiran and Madhuri, you have to answer the first thing that comes to your mind as soon as the question is asked to you. There is no thinking time at all. So Madhuri, what do you suggest? Should we start with Kiran? She's a of course. Yes. All right. Okay. So Madhuri will treat me with a good coffee at her office, for this one, for putting Kiran on the spot first. So, all right, we'll all guns blazing right now. Kiran, I have to ask you, complete the following. Never have I ever. I can't hear, sorry. Never have I ever. Please complete this sentence. Never have I ever. Losing on the hammer. Madhuri, aap jawab de do. Okay. So, never have I ever been on the cruise. On the cruise. Okay, high five to that one, Madhuri. All right. Okay, Kiran, this is for you now. I think मैंने सारी चीजें complete कर ली हैं, इसलिए मैंने answer नहीं किया. Yes, that's the best answer. Okay, Kiran. All right, let's get back. Best advice you have ever given, or best advice जो आपको मिला है, आपने दिया है और आपको मिला है. I can and I will. I loved it. All right. Okay. One thing you want to change about yourself, Kiran, tell us. Nothing. I love that. Oh my God, that's so much of confidence. Kiran, अगर आपका एक talk show होता तो आपके पहले 3 guests उस talk show पे कौन होते? Oh, Gaur Gopal Das ji, Sandeep Maheshwari, and that's Oprah show एक आता है. Winfrey, yes, Oprah Winfrey. Yeah. I'm not surprised with the choice. That's a great choice. अच्छा बताइए, Kiran, what is Kiran's DJ name?
What is Kiran? आपका DJ name क्या है? Is it DJ Kiran या कुछ DJ और है? KD Bell. DJ KD BELLE Bell. Please follow me on Instagram. I love it. That's said it with a swag. मैं वही समझ रही थी भाई, how do we really say it now that we know it कि भाई आपका नाम क्या है, DJ name. But all right, we will try to be as stylish. Thank you, Kiran, for participating in my rapid fire round. Madhuri, have you braced yourself? Yes. Okay, quickly. 3 things you can't live without. Walk, water, and watch. Okay, cool. People of Yota to you are? My family. Oh, that's so sweet. And I know about that family vibe, so that's beautiful as a culture, Okay, God forbid, if we go into another lockdown, which celebrity would you want to be locked down with? We have Kiran on the screen. Kiran? You could Kiran? Kiran, so that I can also build something. Yeah. We'll be your first students, after we wrap up, right away, Kiran. Yeah. Chaliye, great. Okay, Madhuri, who's your biggest cheerleader? I think it's my kids. Oh, that's so sweet. Okay, last one for you, and then we'll decide about the hamper very quickly. We're almost out of time. Which is that one piece of advice you would go back and tell your younger self? Don't overthink. Lovely. All right. There's something that I need to take care as well. Sure. Cool. So this is a good portrayal by both my contestants. Now, who gets the hamper? The audience decides. Audience, can you quickly tell me in your comments who gets the hamper? I don't have so much time to wait for your answers, but there's this uncanny rule that the hamper always belongs to the host. So I hope you ladies would be giving. Are you okay with me keeping the hamper? 100%, please. Very much. Thank you so much. Both of you have been a sport and both of you have been a delight. Thank you so much. And with that, I just want to say that the theme for this year's IWD #Break the Bias propels us to always question the customs, practices, beliefs, and biases, particularly when they marginalize a group of people. In many cases, it is the women. So equal rights are not special rights after all. And we're talking about equality over here. Once again, a very happy International Women's Day on behalf of Yota to all of you, men and women alike out there. And also for the ones who are on a break, of course, as Madhuri mentioned, let's get back to work. Thanking the two of you again. And please remember to take a nice screenshot right away. Okay, let's do a countdown. Let's take a nice screenshot with both of them together, post it on social media, tag us, use the right hashtags, and let's feel the buzz of we being in this together. So Madhuri and Kiran, do you want to just do a pose, or whichever is your signature pose or favorite dance move? This one. I'm going to do this. Oh, I love it, Kiran. Madhuri, I love it too. What does that mean? That is break the bias. This is the theme for this year. Lovely. Okay, I'm going to... This is the break the bias. For me, is this. Yes, absolutely. Our own versions, and you're unique in yourselves. So let's go with this. Take a nice, groupie here, a selfie here with the screenshot, as it comes. 3, 2, 1, with a smile. All right. Thank you so much for being fantastic today, both of you. Kiran, thank you for joining. Madhuri, thank you so much. And so much of love from Yota to all of you. Enjoy the rest of the day. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Have a great day. Bye-bye. Have a great day. Thank you. Happy Women's Day once again. Thank you. Likewise.